सर्वेष्टिगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्यद्वरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। हरिः ओम तत्सत्। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अस्य श्री भगवतः महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक प्रभवादि षष्ठि संवत्सराणां मध्ये श्री क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे प्रथम्यां शुभतिथौ वासरः भृगुवासरयुक्तायां मृगशीर्षा नक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल विशेषण विशिष्टायां अस्यां प्रथम्यां शुभतिथौ श्री भगवतः श्री वासुदेवस्य दिव्याज्ञया श्री वासुदेव प्रीत्यर्थम अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्री भूमनीला गोदा पद्मावती नायिका समेत श्री श्रीनिवास स्वामी सन्निधौ अस्याः देवदेव्याः भगवत्याः श्री पद्मावती नायक्याः प्रीत्यर्थम राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम कल्याण महोत्सव कर्मणि కళ్యాణ ఉత్సవానికి సమర్పించుకున్న ఉభయదాతలు మీ గోత్రం పేరు నక్షత్రం మీ శ్రీమతి యొక్క పేరు నక్షత్రము మరియు మీ పిల్లల యొక్క పేరు నక్షత్రం రాశిని మనసులో స్మరించుకోవలసిందిగా కోరుచున్నాం. கல்யாணோத்சவத்துக்கு சமர்ப்பித்த உபயகாரர்கள் உங்க கோத்திரம் பேரு நட்சத்திரம், உங்க வீட்டில் உங்களுடைய பேரு நட்சத்திரம், குழந்தைகளுடைய பேரு நட்சத்திரத்தை மனசுல நினைத்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். सर्वेषां भक्तानां क्षेमस्थैर्य वीर्यविजय आयुः आरोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्यानुकूल सिद्ध्यर्थं अरोग दृढगात्र वज्र शरीरता सिद्ध्यर्थं श्री पद्मावती नायिका समेत श्रीनिवास स्वामी परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं श्रीपांचरात्र भगवत्शास्त्रोक्त विधानेन कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन करिष्ये. श्री पद्मावती प्रीयतां प्रीयतां भगवती पद्मावती. என்னுள்ளம் கவர்ந்தானை அண்டர்கோன் அணியரங்கன் என்னமுதினை கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினை காணாவே. கொண்டல் வண்ணனாகிருக்கின்ற எம்பெருமான் அவனுடைய கருணையினாலே இந்த திருச்சுகனூர் திருப்பதி திருமலை திவ்ய திருத்தலங்கள் மழை பொழிந்து செழுமையாக இருக்கின்றன. அந்த செழுமையின் அருளுக்கு பாத்திரமாக இருக்கக்கூடியவள் தாயார். அந்த தாயாரினுடைய கருணைதான் வெள்ளமாக மேகங்களாக மாறி வெள்ளத்தை பொழிந்தது என்று சொல்லலாம். அப்படிப்பட்ட அந்த தாயாருடைய திருக்கல்யாண உற்சவம் நம்முடைய நேத்திரங்களுக்கு ஒரு புனிதமான அர்த்தத்தை உணர்த்தும் வண்ணமாகத்தான் இருக்கின்றது. திருச்சுகனூர் என்று சொன்னாலே அந்த திருச்சுகனூரில்தான் எம்பெருமான் இந்த தாயாருக்காக தவம் இருந்த தலமாக போற்றப்படுகின்றது. இதோ பாருங்கள், சுந்தரராஜ பெருமாள் எம்பெருமானுடைய அந்த திருநாமத்தை பார்க்கும் பொழுதே சுந்தரம் என்று சொன்னால் அழகு. என்ன அழகு, எத்தனை அழகு என்று சொல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அந்த அழகு எப்படி வந்தது என்று சொன்னால்
அந்த தாயினுடைய ஆன்மாவில் இருக்கின்ற பிரேரோப்பணை தான் இந்த எம்பெருமானுக்கு அழகை ஏற்படுத்தியது. திருமார்பு நாச்சியார் அல்லவா, அதனால்தான் அந்த அழகு அவனுக்கும் வந்தது. தொட்டாரை தொட்டு என்று வைணவம் சொல்வதற்கு ஏற்ப பிராட்டியினுடைய அந்த சம்பந்தம் அதனால் வந்த அழகாகத்தான் போற்றப்படுகின்றது. இப்படிப்பட்ட ஒவ்வொன்றுக்கும் தொடர்பிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல்தான் வைணவம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் வண்ணமாக அமைகின்றது. இந்த லோக க்ஷேமத்திற்காக வைணவ திருக்கோயில்களில் நடத்தப்படுகின்ற உற்சவங்கள் எல்லாம் இந்த லோகத்தில் இருக்கின்ற பக்தர்களுக்கு அவர்களுடைய கோரிக்கைகளை தீர்க்கும் வண்ணமாக அமைகின்றன. கோடான கோடி பக்தர்கள் எல்லாம் தம்முடைய இருதய கமலத்திலே நினைத்து கொண்டிருக்கின்ற எம்பெருமானை அந்த கோரிக்கைகளை எல்லாம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதற்காக இந்த கோயில் நிர்வாகங்கள் எல்லாம் தாமாகவே முன்வந்து இந்த உற்சவங்களை நடத்துவதென்பது அது பெருமைக்குரிய ஒரு சான்றாக இருக்கின்றது. நம்முடைய முன்னோர்கள் பூர்வாச்சாரியர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் எல்லாம் எம்பெருமான் மீது இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை எல்லாம் அறிந்து அவனுக்கு தர்மபத்னியாக இருக்கக்கூடிய பிராட்டியினுடைய சிறப்பையெல்லாம் அறிந்து இந்த உற்சவங்களை ஏற்படுத்தினார்கள். அப்படிப்பட்ட உற்சவங்கள் எல்லாம் இன்று வரை உலகத்தால் வரவேற்கப்பட்டு மனதிற்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை தரும் வண்ணமாக இருக்கின்றன. மனம் என்கின்ற அந்த 5 புலன்களினுடைய உணர்வு அது மகிழ்ச்சி பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் தனக்கூமை இல்லாதான் தாழ் சேர்ந்தாரு கல்லால் மனக்கவலை மாற்றலரிது என்று வள்ளுவம் சொல்கின்றது. அப்படி தனக்கூமை இல்லாதவன் யார் என்று சொன்னால் அவன்தான் எம்பெருமான். தாள் என்று சொன்னாலே எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை சொல்வதுதான். திருவடிகளுக்கு ஏற்றம் என்று சொன்னால் திருமாலனுடைய திருவடிகள்தான், நாராயணனுடைய திருவடிகள்தான், திருவேங்கடமுடையானுடைய திருவடிகள்தான். அப்படிப்பட்ட திருவேங்கடமுடையானுடைய திருவடிகளையும் நாராயணனுடைய திருவடிகளையும் எம்பெருமானாக இருக்கக்கூடிய 10 அவதாரங்களுடைய திருவடிகளையும் பற்றி 2000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட காலத்திலே ஒரு புலவன் எடுத்து சொல்லியிருக்கின்றான் என்று சொன்னால் அந்த திருவடிகள் மலர்ந்ததற்கு காரணம் என்ன என்று சொன்னால் அந்த மலர்ச்சிக்கு பிராட்டிதான். திருமகள் கேள்வன் அல்லவா அவன். அந்த திருமகள் கேள்வனுடைய அந்த தன்மைதான் அவனுடைய திருவடிகள் மலர்ந்திருக்கின்றன. அவனுடைய திருவடிகளை பற்றி கொள்ளும் பொழுது ஐஸ்வர்யங்கள் வளரும். அதே நேரத்தில் ஐஸ்வர்யத்தோடு சேர்ந்து வீடு பேறு என்று சொல்லக்கூடிய பேரின்ப பெருவாழ்வு கிட்டுவதற்கும் வாய்ப்பாக இருக்கின்றது என்பதுதான். இதோ பாருங்கள், அந்த ஒளிமயமாக இருக்கின்ற கற்பூர ஆரத்தியிலே எம்பெருமானுடைய அருளும் பிராட்டியினுடைய அருளும் நிறைந்திருப்பதை நாம் காணக்கூடியவளாக இருக்கின்றோம். நம்முடைய சாம்பிரதாயத்தை பார்க்கும் பொழுது இப்படியெல்லாம் ஒரு நெறி தவறாமல் செய்யக்கூடிய அந்த சாம்பிரதாய பின்புலங்களை எல்லாம் நம்முடைய பூர்வாச்சாரியர்கள் இன்று வரை தொடர்ந்து பின்பற்றி வருவது அது நமக்கு பெருமையை தரக்கூடியதாக இருக்கின்றது. உலகளவில் எத்தனையோ சமயங்கள் இருந்தாலும் கூட இந்த வைணவத்தில் பின்பற்றக்கூடிய இந்த பூர்வாச்சாரியர்களுடைய அந்த கட்டுப்பாடுகளோடு வழிவகுத்த நெறிமுறைகள் இன்று வரை பின்பற்றப்பட்டு வருவது உலகத்திற்கெல்லாம் ஒரு சான்றாக எம்பெருமானையும் பிராட்டியும் சார்ந்து வணங்கக்கூடிய வைணவத்திற்கு ஒரு ஏற்றத்தை தரக்கூடியதாக இருக்கின்றது. சுகனூரில் இப்பொழுது இதோ இன்றைக்கு புனிதமான ஒரு நாள். ஏனென்றால் பிராட்டிக்கு வெள்ளிக்கிழமை என்பது புனிதமானதாகவே இருக்கின்றது. அந்த சுக்கிரவாரம் என்று சொல்லக்கூடிய வெள்ளிக்கிழமையில் இந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்தை காணக்கூடிய பக்தர்கள் எல்லாம் அவர்கள் பூர்வஜன்ம சுக்ருதம் இருப்பதினால்தான் காணக்கூடியவளாக இருக்கின்றார்கள். ஒவ்வொருடைய தாயாரினுடைய அந்த திருமாங்கல்யங்களை பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு கிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிரகணிக்கு இருக்கக்கூடிய திருமாங்கல்யங்கள் புனிதம் பெறுவதாகத்தான் இருக்கின்றன. அதாவது இந்த கண்கள் அவற்றை நேத்திரங்கள் அந்த காட்சிகளை ஏற்று உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆன்மாவோடு இணைத்து அதன் மூலமாக ஒரு அனுபூதியை பெறக்கூடியதாகத்தான் இருக்கின்றது. அதனால்தான் லோகத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு திருமாளிகையிலும் இந்த தாயாரினுடைய உற்சவங்களை கண்டுகளிப்பதற்காக பக்தர்கள் எல்லாம் கோடான கோடி பக்தர்கள் எல்லாம் காத்து கொண்டு கண்டுகளித்து வருவது பெருமையாகத்தான் இருக்கின்றது.
இப்படிப்பட்ட அந்த திருச்சுகனூரில் இருக்கக்கூடிய தீர்த்தங்கள் எல்லாம் புனிதமானவைகளாகத்தான் இருக்கின்றன. தீர்த்தங்கள் என்பவை எதை நிரூபிக்கக்கூடியவைகளாக இருக்கின்றன என்று சொன்னால், விரஜா நதியோடு ஒப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய அந்த புனித தன்மைக்கு ஒப்பானவைகளாக இந்த தீர்த்தங்கள் இருக்கின்றன என்று நம்முடைய வேதங்கள் எல்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறப்பினை நாம் காணலாம். அப்படிப்பட்ட அந்த தீர்த்தங்களோடு கூடிய அங்கிருக்கக்கூடிய கலசத்தில் இருக்கக்கூடிய தீர்த்தமும், அங்கிருக்கின்ற மலர்களும், அங்கிருக்கக்கூடிய அந்த தீப தூபங்களும், கற்பூர ஆரத்தியும், இவற்றையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் தொலைந்து போன மனதையெல்லாம் மறுபடியுமாக நம்மை மேன்மைப்படுத்தி கொண்டு பக்திக்குள்ளே இழுத்து கொண்டு நாம் மேலோங்கச் செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாகவே இந்த திருக்கல்யாண உற்சவம் நமக்கு அமையக்கூடும் என்று நாம் நினைக்கவும் வண்ணமாகத்தான் இருக்கின்றது. தாயாரை நினைக்கும்போது அவள் எப்பொழுதுமே இந்த லோகத்தில் இருக்கின்ற பக்தர்களை பற்றியே நினைக்கக்கூடியவளாக இருக்கின்றாளாம். எப்பொழுதுமே பக்தர்களை பற்றி நினைக்கும் வண்ணமாக அவள் இருப்பதினால்தான் எம்பெருமான் அவனுடைய கண்களும் சிவந்திருக்கின்றனவாம். எப்பொழுதும் பக்தர்களை பற்றி நினைத்து கொண்டிருக்கின்ற தாயார் எம்பெருமானிடத்தில் தன்னுடைய பக்தர்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது அந்த பக்தர்களுடைய கோரிக்கைகளை தீர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக அவன் எப்பொழுதும் சிந்தித்து கொண்டிருப்பதினாலே அவன் நித்திரையின்றி அவனுடைய சிவந்த செங்கன்மால் என்கின்ற ஒரு திருநாமத்தை பெற்றான் என்று நம்முடைய வேத இதிகாச புராணங்கள் 4000 திவ்ய பிரபந்தத்திலெல்லாம் இதற்கான அர்த்தங்கள் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த கண்கள் எப்படி சிவந்திருக்கின்றன என்று சொன்னால், கரியவாகி புடைபறந்து மிளிர்ந்து செவ்வரியோடி நீண்ட பெரியவாய கண்கள் என்னை பேதமை செய்தனவே என்று சொல்லும் வண்ணமாக கண்கள் சிவந்திருக்கின்றனவா. ஏன் சிவந்திருக்கின்றன என்பதற்கான காரணத்தை நான் சொல்லிவிட்டேன். அப்படிதான் எம்பெருமான் இப்படி பக்தர்கள் மீது அருமையான அனுபூதியை கொண்டவனாக நர்ய பிரஜாம் மே பாகி சக்ஞஸ்ய பசோ மே பாகி ஆகன்ம விஸ்வவேதசமஸ்மப்யம் வசுவித்தாமம் அக்னः சம்ராளபேத்யும் நமபிசஹ ஆயச்சஸ்வா அயமக்னர்கிரஹபாதர்கார்ஹபத்ய பிரஜாவான் வசுவித்தாமஹ அக்னः கிரஹபதேபேத்யும் நமபிசஹ ஆயச்சஸ்வா गृहामाबे तमाबे पद्मोर्जं बिभ्रातमासे ओर्जं बिभ्राद्वस्वमना स्वमेधा गृहाणैमि मनसा वोदमानः येषामध्यते प्रवसन्नेषु सौमनुषो बहुः गृहाणपाह्वयामहे तेनो जानन्द जानतः उपाहोता इह गाव उपाहोता अजावयाः अथो अन्नस्य केलाल उपाहोतो गृहेषु नः क्षेमाय पश्यान्त्ये प्रपद्ये शिवज्ञ षग्मज्ञ संयो प्रघाशिना आहवामहे मरुतश्च ऋषाधसः वरं वेन सजोषसः यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये यदेनश्च कृमामयमिदं पदवयजामहे स्वाहा मोषो न इन्द्रात्र पृत्सदेवैरस्ति युष्मादेषुष्मन्न भयाः महश्चिद्यस्य मीलुषो यव्याः विष्मदो मरुतो वन्दते गीः अक्रं कर्म कृतः सह वाचामायो भुवाः देवेभ्यः कर्म कृत्वा स्तं प्रेतः स च भुवः अवबृधनि चुम्पुननि चरुरसिनि चुम्पुनः अव देवैर्देवकृतमेनो
यासिषमर्त्यर्मर्त्याकृतं वरुरावणो देवर्षस्पाहि पूर्णादर्विपरापदसुपूर्णा पुनरापताम् वष्टविक्रेणावः इषमोर्जग्शतक्रतोम् देहि मे ददामि तेनि मे देहि निते दधौ निहारन्निहारामि ते निहारन्निहारासि मे स्वाहा अक्षन्न मे मदन्तह्यवः प्रिया दोषता अस्तोषतस्वभानभो विप्राणवेष्टयामतीयो जान्विन्द्रते हरे सुसन्दृशं त्वामयं मघवन् वन्देषेमहे प्रणोनं पूर्णबन्धुरस्तुतो यासि वशां अनुयोजान्विन्द्रते हरे मनोन्वाहो वामहे नारासग्रशेनस्तोमेन पितॄणां च मन्मभिः आनायतु मनः पुनः कृत्वे दक्षाय जीवसे दोग्धसौर्यं दृशे पुनः पितरो मनो ददातु देव्यो जनाः देवं प्रातग्रसजमहे पयग्रसोमो रते तव मनस्तनोष बिभ्रातः प्रजावन्दश्च जेमहे येष ते रुद्रभागः सहस्वस्राम्बेकया तञ्जोषस्व स्वाहा एष ते रुद्रभाग आघुस्ते पशुः अवरुद्रमाधे मह्यवा देवन्द्रियम्बकम् यथा नो वस्य संस्करद्यथा न श्रेयसंस्कर यथा नो व्यवसाययात् भेषजमास भेषजङ्गवेष्टाय पुरुषाय भेषजम् सुगमेषाय मेष्यै प्रियं भगयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् प्रियं भगयजामहे सुगन्धिं पातिवेदनम् उर्वारुकमेव बन्धनादितो मुक्षीयमामुताः एतेन रुद्रावसेन परमोजवतोति अवतदधन्वापिनाः गावसकृत्ये वासा अहिग्रसन्न शिवशान्तोति वाजिनां वाजो अवतु भक्षो अस्मान् वेदस्यक्तममृतं बलाय विश्वे देवा अभियत्सं बभूव तन्मादिनाथ प्रजया धनेन वाजहं वाजेन स्योपाहोद उपाहोदस्य भक्षयामि वाजे वाजे भूयसम् सवित्रा प्रसोता देव्या आपवन्दन्तु ते तनोम् दीर्घायुत्वाय वर्चसे कश्यपश्यत्रयायुषम् जमदग्नस्त्रयायुषम् यद्देवानान्द्रियायुषम् तन्मे अस्त्वत्रयायुषम् येन धाता बृहस्पतिरिन्द्रस्य चायुषे पापत् येन देवपामि ब्रह्मणा जीवादवे जीवनाय दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे
सुप्रजास्त्वाय जासा अथो जेव शरदशकम् येदमागम्मदवयजानं पृथिव्या यत्र देवास अजोषन्त विश्वे व्याज्ञसन्तरम् तो यजद्भेराय स्पोषेण समेषामादेमा इमा आपस्तमो मे सन्तु देवेरोषधेत्रायस्वस्वधिते मैनग्रहिग्रसीः आपो अस्मान् मातरः शुन्धयन्तु घृतेनानो घृतः पुनन्तु विश्वज्ञहिरिप्रं प्रवहन्तु देवीरुदिदाभ्यसुचिराभूतये मे दीक्षातपसोस्तनोरासितां त्वा शिवाग्रशग्मां परे दधे भद्रं वर्णं पुष्यन् महीनां पयोऽसि वर्चोदासि वर्चो मे देहि रत्रस्य गणेन कास्य चक्षुर्दास्य चक्षुर्मे देहि चित्पधर्मा पुनातु वाक्पधर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनात्वच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य यत्कामः पुनतच्छगेयम् आवो देवास एमहे वामं प्रायध्यध्वरे आवो देवास आशिषो यज्ञियासो हवामहे स्वाहा यज्ञं मनसः स्वाहोरन्तरिक्षात् स्वाहा द्यावा पृथिवेभ्यः स्वाहा वाता धाराभ्यः आगोत्य प्रयोजग्नये स्वाहा मेधाये मनसग्नये स्वाहा दीक्षाये तपसग्नये स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा आपो देवेर्बृहदेर्विश्वशम्भवो यावा पृथिवे उर्वं वरिक्षः बृहस्पतये हविषा विधेम स्वाहा विश्वा देवस्य नेतुर्मर्तो वोरेतसख्यम् विश्वा राव्ययेषोऽध्यतिद्यं नम्रणेत पुष्यसे स्वाहा ऋक्सामयो शिल्पे स्थस्ते वामारभेते मापातम् आस्य यज्ञस्योदृचः शर्मासि शर्मा मे यच्छगमस्ते अस्तु मामाहिग्रसे ऊर्गस्याङ्गिरस्योर्नम्रद ऊर्जं मे यच्छा सोमस्य नेविरसि विष्णो शर्मासि शर्म यजमानश्च इन्द्रस्य योनेरसि सुषस्य कृषेष्कृधि उच्छ्रायस्व वनस्पत ऊर्ध्वमापाह्यग्रहसः आस्य यज्ञस्योदृचाः प्रजापतिरिति प्रजापतिः देवासुरानिति देवा असुरान् असृजत तत् अन्विति यज्ञः असृजत यज्ञं छन्दागुंसि ते विश्वञ्चः पीति अक्रामन् सः असुरान् अन्विति यज्ञः अपेति अक्रामत् यज्ञं छन्दागुंसि ते देवाः अमन्यन्त अमि इति वै इदम् अभूवन् यत् वयं स्मः इति सः अब्रवीत् प्रजापतिरिति प्रजापतिः छन्दसां वीर्यम् आदायेत्य आदाय तत् वः प्रेति दास्यामि इति सः छन्दसां वीर्यम्
आदायेत्य आदाय तत् एभ्यः प्रेति अयच्छत् तत् अन्विति छन्दागंसि अपेति अक्रामन् छन्दागंसि यज्ञः ततः देवाः अभवन् परेति असुराः यः एवं छन्दसां वीर्यं वेद एति श्रावय अस्तु श्रौषट् यजाये यजामहे वषट्कार इति वषट्कारः भवति आत्मना परेति अस्य भ्रातृव्यः भवति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति कस्मै एकम् अध्वर्युः एति श्रावयति इति छन्दसां वीर्याय इति ब्रूयात् एतत् वै छन्दसां वीर्यम् एति श्रावय अस्तु श्रौषट् यजाये यजामहे वषट्कार इति वषट्कारः यः एवं वेद स वीर्यैरिति स वीर्यैः एव छन्दोभिरिति छन्दःभिः अर्चति यत् किं च अर्चति यत् इन्द्रः वृत्रम् अहन् अमेध्यम् तत् यत् यतीन् अपावपदित्यप अवपत् अमेध्यम् तत् अथ कस्मात् ऐन्द्रः यज्ञः एति सग्स्थातोरिति संस्थातोः इति आहुः इन्द्रस्य वै एषा यज्ञिया तनोः यत् यज्ञः ताम् एव तत् यजन्ति यः एवं वेद उपेति एनम् यज्ञः नमति आयुर्दा इत्यायुः दाः अग्ने हविषः जुषानः घृतप्रतीक इति घृतप्रतीकः घृतयोनिरिति घृतयोनिः एधि घृतम् पीत्वा मधुचारु गव्यम् पिता इव पुत्रम् अभीति रक्षतात् इमम् एति वृष्यते एवै एतत् यमस्य एति वृष्यते एवै एतत् यजमानः अग्निभ्यामित्यग्निभ्याम् यत् एनयोः श्रुतम् कृत्येति श्रुतम् कृत्य अथ अन्यत्र अवभृथमित्यवभृथम् अवैतीत्यव एति आयुर्दा इत्यायुः दाः अग्ने हविषः जुषानः इति अवभृथमित्यवभृथम् अवैष्यन्नित्यव एष्यन् जुहुयात् आहुत्येत्याहुत्य एव एनौ शमयति न आर्तिम् एति ऋच्छति यजमानः यत् कुसीदम् अप्रतीत्तमित्यप्रति इत्थम् मयि येन यमस्य बलिना आचरामि इह एवासन् यमम् कुसीदम् निरवदायेति निः अवदाय अण्डनः सुवर्गमिति सुवहागम् लोकम् एति अप्रतीत्तमित्यप्रति इत्थम् मयि येन यमस्य बलिना आचरामि इह एव सन् निरवदय इति निः अवदये तत् एतत् तत् अग्ने अण्डनः भवामि विश्वलोपेति विश्वलोप विश्वदावस्येति विश्वदावस्य त्वा आसन् जुहोमि अग्धादित्यग्धा अत् एकः अहुतादित्यहुता अत् एकः समसनादिति समसना अत् एकः ते नः कृण्वन्तु भेषजम् सदः सहः वरेण्यम् अयम् नः नभसा पुरः सग्स्फान इति संस्फानः अभीति रक्षतु गृहाणाम् असमर्त्या इत्यसम् अर्त्यै बहवः नः गृहाः असन् सः त्वम् नः नभसः पते ऊर्जम् नः देहि भद्रया पुनः नः नष्टम् एति कृधि पुनः नः रयिम् एति कृधि देवासग्स्फानेति संस्फान सहस्रपोषस्येति सहस्रपोषस्य ईशिषे सह नः रास्व अज्यानिम् राजः पोषम् सुवीर्यमिति सुवीर्यम् संवत्सरीणामिति संवत्सरीणाम् स्वस्तिम् अग्निः वाव यमः इयम् यमी कुसीदम् वै एतत् यमस्य यजमानः एति दत्ते एयत् ओषधीभिरित्योषधीभिः वेदिम् स्तृणाति यत् अनुपौष्येत्यनुपओष्य प्रयायादिति प्रायायात् ग्रीवबद्धमिति ग्रीवबद्धम् एनम्
अमुष्मिन् लोके नेनीयेरन् यत् कुसीदम् अप्रतीत्यमित्यप्रति इत्थम् मयि इति उपेति ओषति इह एव सन् यमम् कुसीदम् निरवदायेति निः अवदाय अनृणः सुवर्गमिति सुवहागम् लोकम् एति यदि मिश्रम् इवाचरेत् अञ्जलिना आसक्तोन् प्रदाव्य इति प्रादाव्ये जुहुयात् एषः वै अग्निः वैश्वानरः यत् प्रदाव्य इति प्रादाव्यः सः एव एनम् स्वदयति अह्नाम् विधान्यामिति विधान्याम् एकाष्टकायामित्येका अष्टकायाम् अपूपम् चतुःशरावमिति चतुः शरावम् पक्त्वा प्रातः एतेन कक्षम् उपेति ओषेत् यदि दहति पुण्यसममिति पुण्यसमम् भवति यदि न दहति पापसममिति पापसमम् एतेन स्मा वै ऋषयः पुरा विज्ञानेनेति विज्ञानेन दीर्घसत्रमिति दीर्घसत्रम् उपेति यन्ति यः वै उपद्रष्टारमित्युपद्रष्टारम् उपश्रोतारमित्युपश्रोतारम् अनुख्यातारमित्यनुख्यातारम् विद्वान् यजते समिति अमुष्मिन् लोके इष्टापूर्तेनेति इष्टापूर्तेन गच्छते अग्निः वै उपद्रष्टेत्युपद्रष्टा वायुः उपश्रोतेत्युपश्रोता आदित्यः अनुख्यातेत्यनुख्याता तान् यः एवम् विद्वान् यजते समिति अमुष्मिन् लोके इष्टापूर्तेनेति इष्टापूर्तेन गच्छते अयम् नः नभसा पुरः इति आह अग्निः वै नभसा पुरः अग्निम् एव तत् आह एतत् मे गोपाय इति सः त्वम् नः नभसः पते इति आह वायुः वै नभसः पतिः वायुम् एव तत् आह एतत् मे गोपाय इति देव सग्स्फानेति संस्फान इति आह असौ वै आदित्यः देवः सग्स्फान इति संस्फानः आदित्यम् एव तत् आह एतत् मे गोपाय इति एतम् युवानम् परीति वहा ददामि तेन क्रीडन्तीः चरता प्रियेण मा नः शाप्ता जनुषा सुभागा इति सुभागाः राजः पोषेण समिति इषा मदेमा नमः महिम्ने उत चक्षुषे ते मरुताम् पितः तत् अहम् गृह्णामि अन्विति मन्यस्व सुयजेति सुयजा यजामा जुष्टम् देवानाम् इदम् अस्तु हव्यम् देवानाम् एषः उपनाह इत्युपनाहः आसीत् अपाम् गर्भः ओषधीषु न्यक्त इति निअक्तः सोमस्य द्रप्सम् अवृणीता पूषा बृहन् अद्रिः अभवत् तत् एषाम् पिता वत्सानाम् पतिः अग्नियानाम् अथो इति पिता महताम् गर्गराणाम् वत्सः जरायु प्रतिधुगिति प्रतिधुक् पीयूषः आमिक्ष मस्तु அவை லோகத்திற்கெல்லாம் ஒரு க்ஷேமத்தை ஏற்படுத்தும் வண்ணமாக அமைகின்றன. மலர்கள் மலர்ந்திருக்கின்ற அந்த காட்சியும் புனிதமான தீர்த்தம் இருக்கின்ற அந்த காட்சியும் அதே நேரத்தில் தீபதூபங்களோடு அங்கே கற்பூர ஆரத்தியும் இப்படி எல்லாவற்றையும் பார்க்கும் பொழுது வேதங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற பிராட்டியினுடைய அருள் தன்மை எப்படியெல்லாம் மேன்மையாக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பது இதன் வாயிலாக தெரியும் வண்ணமாகியிருக்கின்றது. இதோ அந்த மலர்களை பார்க்கும் பொழுது சிந்துப்பூ மகிழும் திருவேங்கடம் என்று, வேங்கடம் என்று சொன்னாலே அது புஷ்ப மண்டபம் என்று போற்றும் வண்ணமாக அமைகின்றது. அந்த புஷ்ப மண்டபம் லோகத்திற்கெல்லாம் மலர்ந்திருக்கக்கூடிய மலர்களைப் போன்று மனதை மலர்விக்கும் மண்டலமாகத்தான் இருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட அந்த புஷ்ப மண்டபத்தில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட இந்த புஷ்பங்கள்தான் இதோ தாயாருக்கும் எம்பெருமானுக்குமாக
சாற்றப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த புஷ்பங்கள்னாலே ஒரு சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு தன்மை, எவ்வளோ அழகான ஒரு பிரேரோப்பணை என்று நாம் சொல்லலாம். ஆனாலும் கூட பகவத் சம்பந்தம் என்கின்ற ஒரு சம்பந்தத்தை பார்க்கும் பொழுது அந்த ஸ்பரிசம் என்பது இருக்கும் பொழுதுதான் அதனுடைய மேலார்ந்த ஒரு அருள் தன்மை என்பது நிறைந்திருக்கும் என்பதுதான் அதனுடைய பொருளாக அமையும். இந்த சுந்தரராஜ பெருமாளை பார்க்கும் பொழுது லோகத்திற்கெல்லாம் அழகை கொடுக்கக்கூடிய வண்ணமாகத்தான் அவன் இருக்கின்றான். இதோ பாருங்கள், அந்த திருமாங்கல்யங்களை பார்க்கும் பொழுது நிறைவேறும் இதன் ரோச்சனோ ரோச்சமான சோபன சோபமான கல்யாண. क्षत्राय वायुः प्रजाभ्य इति प्राजाभ्यः बृहस्पतिः त्वा प्रजापतय इति प्रजापतये ज्योतिष्पतिं जुहोतु यस्या आहाते हरितः गर्भः योनिः हिरण्ययी यस्या आहाते हरितः गर्भः अथो इति योनिः हिरण्ययी अङ्गानि अहृता यस्यै एतां देवैः समिति अजीगमम् एति वर्तना वर्तयानीति निवर्तनेति निवर्तना वर्तया इन्द्रानर्दबुधा भूम्या आहा चतस्रः प्रदिश इति प्रदिशः ताभिः एति वर्तया पुनः वीति ते एभिनद्मे तकरीं वीति योनिं वीति गवीन्यौ वीति मातरं च पुत्रं च वीति गर्भं च जरायु च बहिः ते अस्तु बाल इति उरुद्रप्स इत्युरुद्रप्सः विश्वरूप इति विश्वरूपः इन्दुः पवमानः धीरः आनञ्जा गर्भम् एकपदीत्येकपदी द्विपदीति द्विपदी त्रिपदीति त्रिपदी चतुष्पदीति चतुःपदी पञ्चपदीति पञ्चपदी षट्पदीति षट्पदी सप्तपदीति सप्तपदी अष्टापदीत्यष्टापदी भुवना अन्विति प्रथता स्वाहा महीद्यौः पृथिवी च नः इमं यज्ञं मिमिक्षतां पिपृतां नः भरीमभिरिति भरीमभिः इदं वा आस्ये हविः प्रियम् इन्द्रा बृहस्पति इति इन्द्रा बृहस्पति उक्थं मदः च शस्यते अयं वा अम्परीति सिच्यते सोमः इन्द्रा बृहस्पति इति इन्द्रा बृहस्पति चारुः मदाय पीतये अस्मे इति इन्द्रा बृहस्पति इति इन्द्रा बृहस्पति रजिं धत्तं शतग्विनमिति शतग्विनम् अश्वावन्तमिति योः इन्द्रः पुरस्तात् उत मध्यतः नः सखा सखिभ्य इति सखिभ्यः वरिवः कृणोतु पीति ते विश्वक् वातजोतास इति वातजोतासः अग्ने भामासः ओम यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः
अस्यामेव प्रतिष्ठति। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा।
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ